So welcome to GMAT Wala by Physics Wala, and in this particular session, I'm calling it Insights because we are essentially going to focus on the data insights section of the GMAT exam, and I am going to specifically work with you on two-part analysis that is not math based. Okay, so that's the area that you and I are going to cover. We will develop a way of thinking in a very structured, precise manner, and that will hopefully allow us to uh, develop the kind of thought process that is required, that is necessary in order to get each one of these questions absolutely right. So let's go ahead, dive into it. So two-part analysis it is. Here is your first question. Why don't you pause the video right here, answer the question, and then come back for a discussion. Start. So pause it. I'll have to remove myself fair bit in order to ensure that you are able to read it. So go ahead and go through this. Okay, so are we ready? So I hope you've pressed play because now you have shared your answer to this particular question. So let's start off by reading it together. So there is a marketing strategist who says agency A designed an advertising campaign that our company is about to test with a focus group. Okay, now what exactly is a focus group? There are a lot of different types of research that an organization can conduct. One of those various types of qualitative research, as opposed to being an objective research, data driven research, is a focus group where you handpick a set of people and then you sit down with them and have a moderated discussion in order to figure something out. Okay, so they are launching an advertising campaign. So in all likelihood, what they'll do is that they will pick up people who they believe reflect their target audience group. They will show the campaign to them and then they will ask them whether this campaign is working for them or not. So we are wondering whether a new ad campaign will increase our name recognition among consumers. So they want their brand to become more prominent. Now, as a contingency, as a backup plan, we have decided that we might ask agency B to design an alternate campaign. However, if we find that A's campaign elicits positive responses from the focus group, we will not ask B for a campaign. तो बहुत सिंपल है, A से कैंपेन बनवाएंगे, फोकस ग्रुप को दिखाएंगे. अगर फोकस ग्रुप ने बोला कि ओ यस दिस इज राइट, दिस इज गुड, हाँ दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द रिकॉल ऑफ योर ब्रांड, तो फिर बात वहीं खत्म, वो कैंपेन लॉन्च कर दिया जाएगा. इन केस, अब इनका फॉल बैक क्या है, इन केस द फोकस ग्रुप सेज के यार ना इस कैंपेन में मजा नहीं आया, ये ब्रांड रिकॉल बढ़ा नहीं रहा तुम्हारी, तो फिर देव डिसाइडेड कि फिर ना हम एजेंसी बी के पास जाएंगे, फिर उनको बोलेंगे भाई हमारे लिए कैंपेन तैयार कर दो. तो चलो, अ स्टेटमेंट दैट मस्ट बी ट्रू इफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट दैट मस्ट बी ट्रू. सो आफ्टर द फोकस टेस्टिंग इज कंप्लीट, इफ द कंपनी डैश, then it must also be the case that the company dash. So select for one and two the two different options that create a statement that must be true if the marketing strategist's statements are true. Make only two selections, one in each column. तो basically एक तरह से can I say ये identify the inference question है. यहाँ पे मुझे ऐसी दो चीजें डालनी हैं जो इस पैराग्राफ के बेसिस पे ट्रू निकल करके आए. तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ब्लैंक के लिए ये शुरू कर लेते हैं. हाँ, सो आफ्टर द फोकस टेस्टिंग इज कंप्लीट, इफ द कंपनी बिलीव्स एज कैंपेन विल इंक्रीज द कंपनीज नेम रिकॉग्निशन, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, इससे क्या इंप्लीकेशन निकल करके आएगी. अगर ए के कैंपेन से नेम रिकॉग्निशन बढ़ी तो आप क्या करेंगे, यू विल नॉट आस्क एजेंसी बी फॉर अ कैंपेन. पर इसमें नॉट आस्क एजेंसी बी फॉर अ कैंपेन तो है ही नहीं. तो अगर मैं इसे फर्स्ट ब्लैंक में रखता हूं तो जो सेकंड ब्लैंक में आना चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है. सो देयरफॉर वी कैन डेफिनेटली रूल दिस आउट फ्रॉम हियर. ओके, सिंपल है ना, सिंपल एक तरह से इफ एक्स देन वाई काइंड ऑफ सिचुएशन है ना, दैट इफ द कैंपेन डिजाइन्ड बाय एजेंसी ए डज नॉट वर्क, then we will go to agency B, right?
ओके, फर्स्ट ब्लैंक में अगर हम डालें बिलीव्स एज कैंपेन विल डिक्रीज द कंपनीज नेम रिकॉग्निशन, तो उस केस में क्या करेंगे? इफ द कंपनी बिलीव्स एज कैंपेन विल डिक्रीज द कंपनीज नेम रिकॉग्निशन, तो फिर क्या करना चाहिए? asks B for a campaign, will that be true? Is that going to be true? So इसको एक बार देखते हैं. We are wondering whether a new ad campaign will increase our name recognition among consumers, right? तो अगर अब यहां पे जो की चीज है वो ये है, इफ वी फाइंड दैट एज कैंपेन एलिसिट्स पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस, वी विल नॉट आस्क बी फॉर अ कैंपेन. सो मैं दिखता हूं ना, इफ पॉजिटिव देन वी विल नॉट आस्क बी. इसकी इंप्लीकेशन क्या है? मैं पॉजिटिव को ऐसे लिख देता हूं, अगर पॉजिटिव आया तो बी को नहीं पूछेंगे. हाँ, अगर पॉजिटिव नहीं आया, अगर नेगेटिव आया तो बी को पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं. दैट इज व्हाट इफ देन मीन्स, राइट? अगर कॉज प्रेजेंट नहीं है तो इफेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. तो अगर फोकस ग्रुप, इफ द कंपनी बिलीव्स एज कैंपेन्स विल डिक्रीज, यानी कि पॉजिटिव नहीं आई रिस्पॉन्स ना, पॉजिटिव आती तो बी को नहीं बोलते, पॉजिटिव नहीं आई तो बी को बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं. तो अब अगर मैं इसको फर्स्ट में डालता हूं तो बी वाला जो है, asks B for a campaign, that is turning out to be a possibility. It is not turning out to be a certainty, because the relation is, if it is positive then we will not ask. हाँ, और ऊपर से इधर भी देखो, यहां भी अगर आप इस लाइन को भी रेफर करना चाहें तो एज अ कंटिंजेंसी वी हैव डिसाइडेड दैट वी माइट आस्क. पक्का नहीं है, यहां भी कांट से ही है. हाँ, अगर यहां विल होता तो शायद हम इसको चूज कर लेते. सो द मोमेंट आई पुट दिस इन ब्लैंक वन, आई एम नॉट एबल टू हैव एनीथिंग एट ब्लैंक टू विच कैन बी टर्म्ड डेफिनेटिवली ट्रू. तो ये यहां भी, ये भी आप इसे रूल आउट कर सकते हैं. ओके, देन लेट्स पिक दिस अप. इफ द कंपनी आस्क्स बी फॉर अ कैंपेन. अच्छा, अब अगर बी को कैंपेन के लिए हमने आस्क किया, सो इसी रिलेशन पे वापस आते हैं. लेट्स जस्ट क्लीन इट अप अ बिट. रिलेशन इफ देन में क्या होता है? अगर पॉजिटिव है तो वी विल नॉट आस्क बी, है ना, कॉज इंप्लाइज इफेक्ट. और इफ देन में दूसरा रिलेशनशिप क्या आता है कि अगर इफेक्ट नहीं हुआ तो कॉज जरूर होगा. यानी कि अगर हमने बी को पूछा, इफ वी हैव आस्क्ड बी, तो मतलब कैंपेन का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था. तो अगर हमने बी को पूछा तो यहां पे क्या चीज ट्रू निकलेगी? कैंपेन का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था. सो डू आई हैव दैट? आई डू हैव दैट हियर. सो इफ आई पुट asks B for a campaign in location 1, and then I can put the last option here in location E, and both of these together are going to be true, है ना? फिर से let me explain it using another example. So imagine if I am shot in the head, then I die. इसका मतलब क्या? Shot in the head implies I am dead. I am not shot in the head. Am I dead or not? Can't say, because I can die for a host of other reasons too, no? तो वो सेम तरह का रिलेशनशिप. सिमिलरली, इफ आई एम डेड, वाज आई शॉट? You don't know. Shot in the head, you don't know. But if I'm not dead, I was definitely not shot in the head. That's the kind of relationship that if then shows, and therefore ये दोनों चल जाएंगे. If you ask A for an alternate campaign, ये तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो ये वैसे भी यहाँ पे रूल आउट हो जाता. So in a way we are looking at C and E as our answers to this particular question. So that's your question number 1. Let me take you over to the next one now. Here it is. Sit down, take your time after pausing, and then we will discuss it.
Ready? You're in after solving it. So, ethics board member, all actions that are permissible under the code of ethics are also legal in all of the jurisdictions in which our company operates. Furthermore, regardless of whether it has been determined if an action is legal, it is always permissible to ask the ethics board to review the action for conformity to the code of ethics. So what do we know? एक कंपनी है, उसका एक कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो बताता है क्या सही क्या गलत. कोड ऑफ एथिक्स अगर किसी चीज को अलाउ करता है तो वो डेफिनेटली लीगल है जितने भी जुरिस्डिक्शन में वो कंपनी ऑपरेट करती है. तो आपको पता है ना, लीगल इज वेदर लॉ परमिट्स इट और नॉट, एथिक्स इज वेदर समथिंग इज राइट और नॉट, एंड दीज टू थिंग्स in a large part are identical, but in some cases there can be divergences, there can be differences. For example, marriage between same sex, कुछ लोग बोलेंगे कि यार इसमें it's illegal. हाँ, बट उसी में कुछ लोग बोलेंगे कि पर इसमें यार एथिकल है, मोरल प्रॉब्लम क्या है, अगर उनको रहना है शादी करनी है तो हमें क्या दिक्कत. या एक और एग्जाम्पल लूँ तो गांधी जी की दांडी यात्रा है ना, अंग्रेजों ने बोला नमक नहीं बना सकते, बनाओगे तो इलीगल है. गांधी जी ने बनाया कि उनके हिसाब से राइट तो यही था, मॉरल तो यही था, तो ऐसा. हाँ, सो व्हाट इज मॉरल मे नॉट बी लीगल और वाइस वर्सा एट टाइम्स. हाँ, देयर वाज अ टाइम व्हेन स्लेवरी वाज लीगल बट वाज इट एथिकल. तो वहां पे थोड़े डिस्टिंक्शंस आ जाते हैं. तो हमें दो चीजें पता है. पहला, एक कंपनी है, इसके कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से अगर कोई चीज परमिसिबल है तो डेफिनेटली लीगल है जहां जहां वो ऑपरेट करती है. और दूसरा, अगर कोई एक्शन है जो आप श्योर नहीं है कि यार ये लीगल है कि नहीं, तो आप इसे अपने एथिक्स बोर्ड के पास भेज सकते हैं जानने के लिए कि कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से कंसिस्टेंट है या नहीं. कई बार होता है ना ग्रे एरिया, यार ये करना ठीक होएगा कि नहीं होएगा, है ना, वैसा. तो अब स्टेटमेंट्स पे आते हैं. विदाउट एक्सेप्शन एन एक्शन इज परमिसिबल अंडर द कोड ऑफ एथिक्स डैश if dash it is legal in all of the jurisdictions in which the company operates. Furthermore, one is permitted to ask the ethics board to review an action for conformity to the code of ethics dash the legality of the action has been established. Now select for 1 and 2 the two different options that complete the statements so that they most accurately paraphrase the ethics board members assertions. Make only 2 selections, one in each column. So basically ये जो है, this should paraphrase whatever has been stated by ethics board member. So in other words, both of these things should mean exactly the same thing. तो चलो शुरू करते हैं पहले ब्लैंक से. An action is permissible under the code of ethics if it is legal in all of the jurisdictions in which the company operates. क्या ये रिलेशनशिप ट्रू है? चेक करें. if का मतलब क्या? if cause then effect में, कॉज अगर ट्रू है तो इफेक्ट भी ट्रू होगा, और अगर इफेक्ट ट्रू नहीं है तो कॉज भी ट्रू नहीं होगा. दैट इज व्हाट वी नो. नाउ इज दैट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप गिवन बाय द फर्स्ट सेंटेंस? हाँ, ये बोल रहा है ऑल एक्शंस दैट आर परमिसिबल आर आल्सो लीगल. तो यानी कि अगर कोई कोड ऑफ एथिक्स में परमिसिबल है तो लीगल है. क्या मैं इसको फ्लिप कर सकता हूं? कैन आई से एवरीथिंग दैट इज लीगल इज आल्सो परमिसिबल बाय देयर कोड ऑफ एथिक्स? Let me ask it to you in a slightly different way. अगर मैंने आपको बताया कि यार all A are B, तो क्या इसके बेसिस पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि all B are A? मैं ये नहीं बोल सकता. If all A are B है तो मतलब सारे A B के अंदर हैं, सारे B A हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. इसी को if I try capturing it using Venn diagrams, then these are the actions that are permissible by their code of ethics. All of these are legal. So things which are legal can be here. So if I say an action is permissible under the code of ethics if it is legal, तो मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर लीगल है, अगर यहां पे आते ही वो if लीगल देन परमिसिबल अगर देखूं तो यहां से क्या होगा, लीगल है तो परमिसिबल भी हो गया. और इन अदर वर्ड्स ऑल लीगल आर परमिसिबल, पर ये तो ट्रू नहीं निकल रहा. सो यहां पे इफ तो नहीं लगा सकते, तो क्या लगा सकते हैं? कैन आई पुट ओनली इफ? ओनली इफ क्या होता है? ओनली इफ शोज नेसेसिटी. ओनली इफ शोज, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ओनली इफ यू आर अ ग्रेजुएट you can apply for MBA. अब इसका देखो मतलब क्या है. If you are a graduate, so only if you are a graduate you can apply for you in fact इसको थोड़ा और स्टार्क कर देते हैं.
you will be offered an admit to the MBA program. Let's make it even more specific of our college. So अभी सोचो, only if you are a graduate you will be offered an admit to the MBA program. So if you are a graduate, graduation है आपके पास, आपको admit offer किया जाएगा क्या? नहीं, पक्का थोड़ी ना है, पक्का थोड़ी है, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि उसके बाद आपके प्रोफाइल एसेज, आपके LORs, आपका GMAT का स्कोर, बहुत सारी और चीजें हैं जिन्हें यहां पर देखा जाएगा. ऑन दी अदर हैंड, यू आर नॉट अ ग्रेजुएट, तो मैं पक्का बोल सकता हूं यू विल नॉट बी ऑफर्ड एन एडमिट. तो अगर मैं यहां पे ओनली इफ डालता हूं, ओनली इफ इट इज लीगल देन इट इज परमिसिबल अंडर द कोड ऑफ एथिक्स, तो मतलब अगर कोई चीज लीगल नहीं है तो डेफिनेटली कोड ऑफ एथिक्स परमिट नहीं करेगा. लीगल है तो कर भी सकता है, नहीं भी, है ना. तो कोई भी चीज अगर लीगल नहीं है, यानी कि यहां है, तो कोड ऑफ एथिक्स परमिट नहीं कर रहा. पर अगर कोई चीज लीगल है तो यहां भी हो सकती है, यहां भी, तो हो सकता है कोड ऑफ एथिक्स परमिट करे, हो सकता है ना करे. सो दैट इज कंसिस्टेंट विद द रिलेशनशिप शेयर्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस. तो इसलिए पहले ब्लैंक में मैं इफ नहीं लगा सकता. अच्छा, अनलेस लगा के देखूं. अनलेस इज इफ नॉट. हाँ, an action is permissible under the code of ethics if it is not legal in all of the jurisdiction. ये तो contradict कर देगा. तो if नहीं जा पा रहा, unless नहीं जा पा रहा, वेदर और नॉट भी नहीं जा पा रहा क्योंकि लीगल होना जरूरी है उसका. हाँ, और तो खैर सेंस ही नहीं बनाएगा. सो यहां पे इफ आई लुक एट द फर्स्ट ब्लैंक, आई हैव नो हेजिटेशन इन चूजिंग दिस. सेकंड वन आई फाउंड दैट इजियर. One is permitted to ask the ethics board to review an action for conformity to the code of conduct, whether or not the legality of the action has been established, है ना. Whether it has been determined, हम इसी को पैराफ्रेज कर रहे थे, तो इसका क्लोजेस्ट पैराफ्रेज है whether or not. So these are the two answers that we will go ahead and choose as correct options for ourselves in this particular case. So with that, let me take you over to the next question. Once again, I have put this here, तो थोड़ा जगह मिल जाएगी मुझे काम करने के लिए नीचे. So once again, why don't you pause the video, answer the question and then join me for a discussion. Come on. So pause करें, solve करें, फिर बात करते हैं. So are we ready? Can we go ahead and look at it? देखना शुरू करें, चलिए आइए. So let's go ahead and begin our discussion of this particular question. So what do we know? A certain mail order company sells t-shirts, buttons, stickers and current and past issues of its magazine. Each order placed to the company consists of one or more items, and for each order the company packages all of the items in the order together. Any employee who packages an order packages the entirety of that order. Among the orders placed to the company today, अब देखते हैं, none includes both a t-shirt and a magazine. तो हमें पता चला क्या कि भाई टी शर्ट और मैगजीन ये साथ में नहीं होंगे. All of those that include a past issue of the magazine also include the current issue of the magazine. Most of those that include a magazine also include a sticker. None of those that include a button also include a sticker. तो आप देख रहे हो बटन और स्टिकर भी साथ में नहीं जा रहे हैं. Okay, so statement: for the orders placed to the company today, if one employee were to package all of the orders that included a dash, that employee would also package all of the orders that included a dash. So हमें दो ऑप्शंस दिखने हैं जो कंप्लीट करते हैं जिससे कि एक्यूरेट हो, यानी कि एक तरह से फिर से इन्फरेंस. If this information is true, then what do I put in blank 1 and blank 2 so that this statement goes on to become true? तो इसमें बेसिकली तो ये देखना है कि कौन सी दो चीजें जो साथ में जाएंगी, है ना. जो दो चीजें साथ में जा सकती हैं वही पैक करेगा सेम एम्प्लॉय. तो साथ में जाने वाली चीजें हमारे पास हैं सिर्फ ये. अब इसका इंप्लीकेशन देखते हैं. ऑल ऑफ दोज दैट इंक्लूड अ पास्ट इशू ऑफ द मैगजीन ऑल्सो इंक्लूड द करंट इशू ऑफ द मैगजीन. तो अब मुझे एक बात बताएं, इफ somebody places a past issue, order for a past issue of the magazine, तो क्या इसके साथ करंट इशू जाएगा? एब्सोल्युटली. पास्ट इशू अगर ऑर्डर किया है तो करंट इशू डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, राइट. अच्छा, दूसरा, अगर किसी ने करंट इशू
ऑर्डर किया है तो क्या इसके साथ पास्ट इशू जाएगा? इफ समबडी इज ऑर्डर्ड करंट इशू तो क्या पास्ट इशू जाएगा? देखो हमें पता क्या है, पास्ट इशू अगर किसी ने ऑर्डर किया है तो उसने करंट इशू भी ऑर्डर किया है। पर अगर किसी ने करंट इशू ऑर्डर किया हो तो जरूरी थोड़ी है कि उसने पास्ट इशू ऑर्डर किया ही हो। दैट्स व्हाट द इंप्लीकेशन इज, राइट? सो पास्ट इशू के साथ करंट इशू जाना पक्का है, लेकिन करंट इशू के साथ पास्ट इशू जाना पक्का नहीं है। हो सकता है जाए, हो सकता है ना जाए, राइट? तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सिर्फ करंट इशू ऑर्डर करे? हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कोई सिर्फ पास्ट इशू ऑर्डर करे? ना, पास्ट के साथ तो करंट जाएगा ही जाएगा। करंट आप स्टैंड अलोन ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब हम देखना शुरू करते हैं। अगर मैं फर्स्ट में डालता हूं बटन, कि एक एम्प्लॉय है उसने बटन डाला, तो उसके साथ बटन के साथ और क्या है जो जाएगा ही जाएगा? हमें सिर्फ ये पता स्टिकर नहीं जाएगा। तो बटन के साथ इनमें से कोई चीज ऐसी है जो पक्का से जाए? नहीं, तो हटा दो। बटन फर्स्ट में तो नहीं आ रहा वैसे भी। हाँ, इनफैक्ट जस्ट कीप स्विचिंग द कलर्स। अच्छा, if your order includes a current magazine, that employee would also package all of the orders that include a past magazine. अच्छा, अब कोई एम्प्लॉय है जो सारे करंट मैगजीन वाले इश्यूज वाले ऑर्डर्स पैक कर रहा है, तो करंट मैगजीन वाले पैकेजेस में क्या होगा? करंट इशू वाला पैकेज में सिर्फ करंट इशू हो सकता है, या फिर उस करंट इशू के साथ में पास्ट इशू भी हो सकता है। तो दो तरह के ऑर्डर होंगे ना, कुछ लोग जिन्होंने सिर्फ करंट इशू मंगवाया, कुछ लोग जिन्होंने पास्ट इशू और करंट इशू दोनों मंगवाए। खाली पास्ट इशू वाला तो कोई है ही नहीं, राइट? सो इफ somebody is packaging all the orders that carry a copy of the current issue, that employee would also package all of the orders that include a past issue। बोल सकता हूं मैं यहां पे। अब क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि ये वो सारे पैकेजेस हैं जिनमें मैगजीन का करंट इशू गया। इसी के अंदर कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें साथ में पास्ट वाला इशू भी गया, क्योंकि पास्ट इशू तो करंट इशू के बिना जा ही नहीं रहा है। सो ऑल पास्ट इश्यूज ऑल्सो इंक्लूड करंट इश्यूज। हाँ, करंट इश्यूज के अलावा भी जा सकते हैं। सो एनीबडी हु इज पैकेजिंग करंट इश्यूज ऑफ द मैगजीन विल ऑल्सो पैकेज ऑल दोज ऑर्डर्स दैट कंटेन अ पास्ट। तो यहां पे अगर मैं ये रखता हूं तो इसके साथ ये ट्रू है। वाइस वर्सा कर सकता हूं क्या? इफ somebody is packaging all the past issues, will he also package all the current issues? पास्ट इशू वाला तो ये रहा। हाँ, will he package the rest of the current issues too? We don't know। वो तो ऑर्डर अगर चेंज कर दूंगा तो ये कैन नॉट बी डिटर्मिन हो जाएगा। स्टिकर टी शर्ट का साथ में कोई रिलेशन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट स्टिकर का मैगजीन के साथ रिलेशन है, वो भी मोस्ट के साथ, तो यू कांट बी डेफिनेटिव। सो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी आवर बेस्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर question. So there you go, B and C respectively. And here is one more rather lengthy question for you. I would ask you to go ahead, pause it here, and then we will work together once you are done. Okay, so let's start. पहले पढ़ते हैं फिर discussion करते हैं. At XYZ Incorporation, an employee receives a verbal warning upon accumulating at least 3 unexcused absences within any 365-day period, and a written reprimand upon accumulating at least 4 such absences. For any single 8-hour workday, missing between 10 minutes and 2 hours of work counts as 1/3 of an absence. Missing between 2 to 4, half. Missing more than 4, full. However, an employee may stay late to make up for up to 1 hour of an unexcused absence on the same day. The table contains descriptions of the unexcused absences of 5 employees of XYZ Incorporation. तो हमें बता दिया है कि this is a list of unexcused absences. Why is it important? अगर मैं आपको ये बोलूं कि an employee has 4 absences in a 365-day period, will that person get a written reprimand? We don't know. Why? Because those absences must also be unexcused. अगर वो excused वाली होंगी तो नहीं चलेगा ना। तो हमें already given है कि यहाँ पे जितने भी absences हैं वो सारे unexcused हैं। Assume that in each case the employee had no other unexcused absences, मतलब ये और सिर्फ ये, इसके अलावा और कोई unexcused absence थी नहीं,
और मेड अप नो अदर टाइम, मतलब इवन इफ दे मेड अप टाइम जो यहां दिया हुआ है इन्होंने, हाँ, एम्प्लॉय में स्टे लेट टू मेक अप फॉर अप टू 1 आवर ऑफ एन अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंस। तो अगर किसी ने वो मेड अप किया भी है तो वो भी यहां पे दिया है, इसके अलावा कोई मेकअप नहीं है उसका टाइम का। सो इन द टेबल सेलेक्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एम्प्लॉय हु क्वालिफाइड फॉर अ वर्बल वार्निंग बट नॉट अ रिटन रेप्रीमैंड। सेलेक्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एम्प्लॉय हु क्वालिफाइड फॉर अ रिटन रेप्रीमैंड। ओके, तो अब विच एम्प्लॉय गेट्स अ वर्बल वार्निंग? वर्बल वार्निंग के लिए आपको चाहिए at least 3 unexcused absences within a 365 day period। तो हमें एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसको सिर्फ वर्बल वार्निंग मिली लेकिन रिटन रेप्रीमैंड नहीं मिला, यानी कि उसके 365 डे पीरियड में हमारे पास क्या आया? ही हैड 3 or more unexcused absences but his unexcused absences are less than 4। 3 और मोर है मगर 4 से कम है, तो 3 हो सकता है, 3.25 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, ऐसा होगा, बट 4 नहीं पहुंचा। हाँ, सो एटलीस्ट 3 है लेकिन 4 नहीं है। और जिसको रिटन रेप्रीमैंड मिला उसके पास ऑब्वियसली 4 होंगे ही होंगे। सो वी सिंपली नीड टू स्टार्ट इवैल्यूएटिंग ऑल ऑफ दीज। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एब्सेंट ऑल डेज ऑन 5th April 2010, 8th June 2010, 17th April 2011, 14th June 2011। तो देखना शुरू करें, क्या इसे वर्बल वार्निंग या रिटन रेप्रीमैंड में से कुछ मिलेगा? कैन वी स्टार्ट चेकिंग फॉर दिस, राइट? तो अब एक तो मैं डेट देखूं, ये है 5th April 2010 और ये आ रहा है 14th June 2011। क्या ये 365 डे पीरियड है या उससे ज्यादा है? ये तो भाई उससे ज्यादा हो गया है ना। तो चलो देखते हैं। 5th April 2010, दैट इज 1 अनएक्सक्यूज्ड लीव। 8th June 2010, 1 अनएक्सक्यूज्ड लीव। ये भी 1 अनएक्सक्यूज्ड लीव, ये भी 1 अनएक्सक्यूज्ड लीव। तो वैसे देखें तो 4 अनएक्सक्यूज्ड लीव हो गए, बट दिस इज 5th April 2010, दैट्स 8th June 2010, दिस इज 17th April 2010। अभी 5th April 2010 से 17 2011 तक ये तो 365 डेज से ज्यादा हो गए। तो अगर मैं ये 365 डे पीरियड देखूं तो इसमें ही हैज ओनली 2 अनएक्सक्यूज लीव। तो इस पीरियड के लिए तो इसे ना वर्बल वार्निंग मिलेगी ना रिटन रेप्रीमैंड मिलेगा। आगे देख लेता हूं, 8th जून से 17th अप्रैल तक, इसमें भी सिर्फ 2 आ रही हैं क्योंकि उसके बाद तीसरी टेक्स यू बियॉन्ड 1 ईयर, बियॉन्ड 365 डेज। और इनको देखूं तो यहां पर भी सिर्फ 2 ही आ रही हैं। हाँ, so in any given 365 day period, this employee has only 2 unexcused leaves, which means that he will get neither a verbal warning nor a written reprimand. So ये हट गया। अब next पे आ जाते हैं, right? Absent 4.5 hours but stayed 1 hour late on May 13, 2010। तो 13th में 2010 को 4.5 घंटा, बट 1 घंटा लेट भी रहा तो टोटल 3.5 घंटा। 3.5 घंटा अगर कोई लेट रहता है, 3.5 आवर्स के लिए अगर कोई लेट रहता है तो बिटवीन 2 and 4 आवर्स हो गया, तो ये हाफ एन एब्सेंस हो गई। ठीक है, तो ये हो गया 0.5 डेज ऑफ अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंस। एब्सेंट ऑल डे ऑन 2nd जून, सो दैट्स 1। फिर उसके बाद 1 में 2011, दैट्स 1, एंड 21 जुलाई 2011, दैट्स 1। सो इस ऑप्शन में टोटल अनएक्सक्यूज्ड लीव्स हैं हमारे पास 3.5। लेकिन फिर से डेट्स चेक कर ले एक बार। हाँ, इसको डेफिनेटली रिटन रेप्रीमैंड तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए यू नीड टू टच 4। क्या इसको वर्बल वार्निंग मिलेगी? चेक करते हैं। ये है 13th में 2010 और ये है 2nd जून 2010, चलेगा। अच्छा, 13th मई से लेकर के 1st में, ये तो 365 डे पीरियड है, लेकिन जैसे ही आप 21 जुलाई पे गए वो 365 डे पीरियड से बाहर हो गया। तो इफ आई लुक एट अ ब्लॉक ऑफ दीज 3,
तो इस 3 दिन के ब्लॉक में मेरे पास है 2.5 days ऑफ unexcused absences. So does that trigger a verbal warning? No. आगे वाले सेट पे मूव करके देख लेते हैं. सो अगर मैं यहां से शुरू करूं 2 जून से 21 जुलाई 2011, 365 डेज के बाहर चला गया है ना. तो यहां पर आपके पास 2.5 आ रहे थे. इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर तो 365 डे पीरियड में खाली यही 2 आ रहे हैं. So that's only 2. So will we give this person a verbal warning? No. और इसमें 1 मई 2011 से 21 जुलाई 2011 तक फिर से 365 डे पीरियड है ये. बट इस पीरियड में भी सिर्फ 2 ही अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंसेस हैं. तो सेकंड में भी कोई वर्बल वार्निंग नहीं मिलेगी. तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया. थर्ड पे आते. Absent for 4.5 hours on 19th March 2010, stayed 1 hour late on 20th March 2010. अब देखो, you may stay late to make up for up to 1 hour of an unexcused absence on the same day है. So ये 19th March को लेट रहा, stayed 1 hour को unexcused रहा and stayed 1 hour late on 20th. तो ये तो irrelevant हो गया, ये तो हटा ही दो. And 4.5 counts as 1 day of unexplained leave. Absent all day on 8th and 9th February 2011, so that's 2 days. Arrived 40 minutes late on 17th April, so that is 1/3 of a day. Right? तो अब डेट्स भी चेक करते हैं. 19th March 2010 से लेके 8th and 9th February 2011 तक ये 365 डे पीरियड है ना. सो अगर ये 365 डे पीरियड है तो इसमें 3 इसके अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंसेस हो गए. उसके बाद जो जा रहे हैं आप वो 17th अप्रैल पे जा रहे हैं, विच इज टेकिंग यू बियॉन्ड 365 डे पीरियड. तो यहां पे रिटन रेप्रीमैंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन वर्बल वार्निंग डेफिनेटली मिलेगी. सो यू आर डेफिनेटली गेटिंग अ वर्बल वार्निंग हियर. नेक्स्ट चले. एब्सेंट 3.5 hours on 13th September 2010. मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसको, सब हटा देता हूं आंसर्स को छोड़ करके. सो ये तो हमको मिल गया. अब इस पे आ रहे हैं. 3.5 hours on 13th September 2010. So 3.5 hours would basically mean half. So that's 0.5. 1 hour on 15th September 2010, 1 hour would basically be 1/3. Absent 6 hours, 6 hours 4 घंटे से ऊपर जाते ही तो एक अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंस हो गई. 2.5 hours on 18th September, which is 2.5 hours is half a day. Right? वो फिर से वही 0.5 ही लिख देता हूं. Let's just stick to the same notation. So that's another 0.5 right here. Absent 1 hour on 19th September. So 1 hour अगर है तो that is 1/3. तो वैसे टोटल देखें तो कितना आ रहा है आपका यहाँ पे? What are we getting? टोटल अगर मैं देखूं तो that's 1 and 1 2 and then 2/3. टोटल 3 भी नहीं बन रहे. तो अगर 3 नहीं बन रहे तो ना वर्बल वार्निंग मिलेगी, ना ही अनएक्सक्यूज, ना ही रिटन रेप्रीमैंड. तो वो मुझे ईयर्स चेक करने की, 365 डे पीरियड चेक करने की जरूरत ही नहीं है. इसे भी हटा दो. तो बचेगा क्या? यही तो आंसर तो यही होना चाहिए. बट देख लेते हैं फिर भी. लेट्स जस्ट गो अहेड एंड वेरीफाई इट. वेरीफाइंग इट विल एंश्योर दैट इन केस हमने कहीं और गलती की हो तो ध्यान में आ जाए. सो एब्सेंट 3 hours on 7th July 2010. So that is half a day. Absent 2.5 hours. That's another half a day. Absent all day on 31st January 2011 and 4th January. So these right here are 2 days. 5 hours will be again a full day. So total यहाँ पे अगर मैं देखूं तो I am getting 4, and all of these are all of these falling within that same time period. So check करते हैं. 7th July 2010 से हमने शुरू किया. उसके बाद में 13th September 2010, 31st January, 4th July 2011, ये बिल्कुल इसके बीच में आ रहा है.
12th March 2011. So we are talking about within 365-day period. तो E में within a 365-day period we are getting 4 days of unexcused absence. So which means that it does qualify for a written reprimand and therefore that is going to be our answer. तो आराम से आप इसको ना करके देखिएगा दोबारा, in case you could not get it right and you'd realize that these are going to be your answers. So that's what I brought for you today. तो आज के लिए इतना ही. In case you want to stay in touch and reach out to me later, you can do that using this Telegram group. And before I sign out for the day, I wanted to leave you with this one tiny small thought. The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new. Past में जो था सो था, उसको क्या सोचना, क्या झगड़ना, अब तो बस ये देखो आगे क्या कर सकते हैं in order to build an amazing life. So that's it from me today. I'll see you in the next one. Until then, keep working hard and do let us know if you need our help in any which way. Okay? So take care. Enjoy your day ahead.